Hello students, in course of study, today we will study chapter 6, Stone Soup in Bohemia. If you go through the text, you will find in this chapter that if a human being is wise, so he can be survive in any circumstances by befooling others or by using his witty or cunningness. So the same things we will study in this chapter. Basically, this is the story of a European. It is taken from the European history and how the soldiers were surviving after winning the war, because whenever they were going to a war, they do not have the enough food, but after winning they were returning to home, so it was the far away from their homes. That's why they were using their witty, their cunningness to survive. Now let's you think Stone Soup in Bohemia. Now see here first paragraph. In Europe, in the old days, soldiers returning from war used to roam around in the countryside. They depended partly upon the kindness of the populace and partly, as we shall see in this tale, upon their own sharp wits. Now see, in Europe in the old days, so the writer is talking about the old days of the Europe, when the soldiers they were returning to his home and they were roaming here and there. The dependent party partly upon the kindness of the populace and party, as we shall see in this tale, upon their own sharp wits. So when they were returning to their homes, they were very tired, so they were not able to get the food by himself or themselves. That's why they were dependent upon the people, those who are living the countryside. But some of the places they were not getting the good people, those who are living in the countryside. So there they were using their wits. मीन्स इन द यूरोप, यानी यूरोप में ये यूरोप की ये कहानी है। वहाँ पर जो सोल्जर्स लोग थे, काफ़ी पुराने समय की ये कहानी है। जो सोल्जर्स लोग होते थे, वो लोग जब युद्ध करके अपने घर को वापस आ रहे होते थे, तो वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। ठीक है, सपोज आपको यहाँ से युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए इंडिया के साउथ कॉर्नर पर, केरल पर। ठीक है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ तो किसी को आपने देखा नहीं, रास्ता आपने देखा नहीं, सिर्फ आप युद्ध करने चले गए, तो वहाँ से वापस आते समय आपको बहुत सारी परेशानी होगी। तो इस तरह से वहाँ भी होता था। और जो सोल्जर्स लोग हैं वो लोग वापस आ रहे थे,
तो यहाँ वहाँ भटकते हुए तो रास्ते में कहीं उनको कुछ खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी थी जहाँ के लोग अच्छे नहीं थे। वो लोग कुछ भी देने के लिए, खाना देने के लिए राज़ी नहीं होते। तो वहाँ पर जो सोल्जर्स लोग होते थे, जो लोग घर आ रहे थे, वो लोग अपना बुद्धि का यूज़ करके, बुद्धिमत्ता का यूज़ करके खाने की व्यवस्था कर लेते थे। Now see, 3 or 4 centuries ago in Bohemia. So Bohemia is a place. It is the story of 3 or 4 centuries ago. Means 3 या 4 सौ साल की पहले की कहानी है। और किस जगह की? बोहेमिया, यह एक प्लेस था। A soldier reached a small village. It was a drab. So drab means डल, बोरिंग, जो कि अच्छा ना हो। थ्रेडबेयर काइंड ऑफ अ प्लेस। आपने अगर थर्ड में चैप्टर पढ़ा होगा, याद होगा, कृष्णा एंड सुदामा। सो सुदामा रीच टू कृष्णाज पैलेस इन टैटर्ड क्लॉथ। याद है? जो फटे पुराने कपड़े पहन करके वो सुदामा से मिलने जाता है। तो वैसा ही जो जब ये सोल्जर्स जब बोहेमिया में पहुंचा, बोहेमिया के एक छोटे से गांव में, was थ्रेड आफ्टर काइंड ऑफ अ प्लेस। तो जो स्थान था वो काफ़ी गंदा था, वहाँ के जो लोग थे वो भी ठीक नहीं लग रहे थे। But he walked into the village square and unloaded his meager kit, a rock leather pack, a horsebear blanket, and an iron cauldron. Cauldron, you know, cauldron, it is a iron pot which is made of iron, just like bowl, just little bit big from the bowl, जैसे जो कटोरा होता है उससे थोड़ा सा बड़ा। So but he walked into the village square and unloaded his meager kit. तो जो सोल्जर्स था जब उस गांव में पहुंचा तो वहाँ स्क्वायर में इधर उधर घूमा और अपना जो भी सामान लिया था उसको एक जगह पर रखा। और जितने भी उसके पास सामान थे, रॉक लेदर पैक, हॉर्स बेयर ब्लैंकेट एंड आयरन कॉल्ड्रन। तो जैसे आप देखेंगे आर्मी के लोग जो सोल्जर्स होते हैं वो चलते हैं तो अपने साथ कंधे पर अपना पूरा सामान लेके चलते हैं, ठीक है। उनके साथ उनकी बंदूक, खाने पीने के कुछ सामान, कुछ हथियार, ठीक है। तो वो क्या होता है? मेगर किट। तो सब लिया और उसको फिर वो ले जा कर के उस स्थान पर रख दिया। Which he carried on his back like a hump. Hump, you know, थर्ड में पोएट्री पढ़े होंगे, थर्ड में पोएम, तो एक चैप्टर था कैमल प्राउड ऑन हिज हम्प। तो जो कैमल का आप देखेंगे जो बीच का हिस्सा होता है वो निकला हुआ होता है, जिसको हम पुट्ठा बोलते हैं। तो जो ऊपर का हिस्सा जो निकला होता है बॉडी पार्ट में, तो वैसे ही जो वो कॉल्ड्रन आयरन पॉट लिया हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको हम्प यानी बॉडी में निकला हुआ है, ठीक है। तो उस तरह से वो लग रहा था। स्ट्रेचिंग हिमसेल्फ, लूजनिंग हिज कोट एंड टेकिंग हिज बूट्स ऑफ, ही सेटल डाउन ऑन द पेमेंट फॉर द नाइट। तो पेमेंट, यू नो, फुटपाथ एरिया, जैसे कि आप अभी यहाँ से गुजरेंगे या कहीं से आप गुजरते हो तो आप देखेंगे रोड के किनारे जो लोग कोई रह रहा है, सोए हुए हैं, इस तरह से उसको कौन सा एरिया बोलेंगे? पेवमेंट। तो जैसे गांव के साइड से कोई रोड जा रहा था, वहाँ पर जो फुटपाथ वाला एरिया था वहाँ पर उस आर्मी ने अपना सारा सामान, फिर अपना जैकेट वगैरह उतारा और अपना बूट वगैरह उतारा और वहाँ पर रात बिताने के लिए रेडी हो गया।
Almost at once he felt a certain hostility among the passers-by. Almost at once he felt a certain hostility. तो मोस्टली टाइम वो ये पाया कि जो यहाँ के लोग हैं उससे वो काफ़ी खुश नहीं हैं. ठीक है. A grumpy resentment. Resentment means feeling of anger, means वो क्रोधित हो रहा था. और grumpy means dissatisfied. तो वहाँ का जो कंडीशन था, यानी जो जब वो वहाँ रुका था तो वो पाया कि जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो लोग क्या हैं, क्रोधित हैं, उससे संतुष्ट नहीं हैं. I suppose you think we are going to feed you, said one sly old man. तो वहाँ पर एक जो स्लाई, स्लाई मीन्स कनिंग, जो काफ़ी चतुर होती. तो वहाँ पर जो एक चतुर महिला थी उसने कहा, आई सपोज यू, ये मान लो कि हम लोग अब तुमको बनाने जा रहे हैं, यानी तुम्हारा भोजन बनाने जा रहे हैं. Leaning on his stick as he was the soldier, well, I shall have you know, young man, that I am the bushmaster of the village, and I will tolerate no good for nothings here. We have mouths of our own to think of. So then the bushmaster came near to the soldiers, and he told that only we have to have our foods, not for you. तो जो बुर्ज मास्टर है वो वहाँ पर गया और उसने कहा कि हम लोग केवल यहाँ पर अपने लिए खाने पीने का सामान रखे हैं, किसी और के लिए नहीं. Do you hear me, young man, said this horrid person. तो जो बुर्ज मास्टर था वो डराते हुए उस सोल्जर्स को कहा, Do you hear me, young man, said this horrid person. क्या तुम सुन रहे हो कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हम लोग केवल अपने लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं खाने रहने के लिए, सब हम लोग अपने लिए रखे हैं. So I hope the narration of this story you have understood. If you face problem, so please ask.